मौजूद हैं। संचार एवं सूचना 31 प्रौद्योगिकी अक्टूबर और कानून 2004 और न्याय मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद जी का और माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली जनाब नजीब जंग का हम आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। माननीय सम गच्छध्वम संवदध्वम संबो मनासि जानताम देवा भागे यथा पूर्वे संजनाना उपासते, यानी एकता के सूत्र में बंधे चलो। आज ये राष्ट्र लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को बड़ी श्रद्धा के साथ स्मरण कर रहा है। सचमुच मानो उनके व्यक्तित्व का एक एक अणु लोहे के कण से बना हो। उन्होंने आज़ाद भारत की 550 से भी ज़्यादा रियासतों का भारतीय संघ में विलीनीकरण किया। ये इतना बड़ा योगदान रहा है जिसके लिए ये राष्ट्र सरदार पटेल का हमेशा हमेशा कृतज्ञ रहेगा। कुछ लोग थे कि वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग थे कि वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग थे कि वक्त के सांचे बदल गए। अब हम माननीय शहरी विकास मंत्री श्री वेंकैया नायडू से सादर निवेदन करते हैं कि कृपया स्वागत भाषण दें। मित्रों, मैं हम सब के ओर से हमारा प्रियतम नेता भारत का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को स्वागत कर रहा हूं। साथ ही साथ हमारा पार्टी का वरिष्ठ नेता और केंद्र सरकार में विदेश मंत्रालय का दायित्व संभालने वाले बहन सुषमा स्वराज जी को भी स्वागत कर रहा हूं। मेरा साथी श्री रविशंकर प्रसाद जी, कम्युनिकेशन मिनिस्टर, दिल्ली लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री नजीब जंग जी, पूरा दिल्ली से विभिन्न इलाके से आए हुए बच्चे, बहनों और भाइयों, मैं आप सबको इस शुभ अवसर पर स्वागत करना चाहता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं। सचमुच में मैं मन में बहुत आनंद महसूस कर रहा हूं। बचपन से मेरा मन में ऐसा था, सरदार पटेल जी के साथ इतिहास ने अन्याय किया, ऐसा मेरा मन में था। इतना साल के बाद हमारा प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई के नेतृत्व में सरकार ने पहली बार तय किया, सरदार पटेल जी का जयंती जन्मदिन के अवसर पर राष्ट्रीय एकता दिवस बनाने के लिए निर्णय किया है। ये बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है। Friends, as a student, I used to think, like millions of the people across the country, that history has not done justice to Sardar Vallabhbhai Patel, who has single-handedly unified the entire country after independence. He is such a great person. And the people used to think, and I also one among them, that had Sardar Patel been the first Prime Minister of India, the fate of India would have been different, the situation would have been different. That was the feeling of the millions of the people across the country. Here, what has happened. Now, friends, today, the people of India are overwhelmed of the commemorating of the birth anniversary of a great son of India who had single-handedly unified our country at a time of great trial and tribulation. History has often proved that every crisis would find its man. In the aftermath of our country's independence partition, a great crisis was staring at the still-to-be-born India. Rulers of about 547-48 provinces, some of them were toying idea of separation. Some of them even, one of the ruler like Hyderabad was thinking of even going with our neighbor Pakistan. But Sri Sardar Patel, it is his resoluteness which has brought total integration of the country. And today, if Hyderabad is somewhere in the heart of India, we can imagine what the situation would have been. To understand the significance of Sardar Patel's vision and his contribution to the unification of our country, one only needs to imagine a situation that Hyderabad not being part of India. Friends, such a crisis India, man with a mind of steel and great vision, we were indeed fortunate to have found
one in Sardar Patel. Do our history books and school curriculum present a fair and balanced account of such legacies? The hard-fought independence of our country is a result of sacrifice of many great leaders. Sardar Patel was among the foremost of such leaders, both during and after independence. Peasant movements of Kheda, Bardoli made Vallabhbhai Patel the Sardar. Sardar and Pandit Nehru were like 2 ears and eyes and arms of Mahatma Gandhi. But where does Sardar Patel in the scheme of things after his death in 1950s? Why we were forced to be so dishonest to the great vision and contribution of Sardar Patel? Should we not give a fair and balanced account of the modern history of our country and its lead actors to the post-independent generations? This is the objective of our government decision to observe Sardar Patel's birth anniversary as Rashtriya Ekata Divas. This is not intended to belittle any other legacies and contributions of other great leaders. Pure and simple, our intention is just to do justice to the words and deeds of Sardar Vallabhbhai Patel. Friends, on this occasion, the Honorable Prime Minister is going to administer a pledge to all of us, reminding about the sacrifice that great man has made and the need for unity and integrity of the country. Safety, security, unity is the need of the hour. अलग भाषा अलग वेश फिर भी अपना एक देश, विविधता में एकता भारत का विशेषता, इस विषय को हम लोग हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। मैं मित्रों, मैं आमंत्रित कर रहा हूं माननीय प्रधानमंत्री जी को आवे और देश का जनता को यहां से संबोधित करे, अपना संदेश दे। मेरे साथ आप लोग बोलेंगे, मैं कहूँगा सरदार पटेल, आप लोग कहेंगे अमर रहे, अमर रहे। सरदार पटेल, सरदार पटेल, सरदार पटेल। मंच पर विराजमान मंत्री परिषद के हमारे वरिष्ठ साथी आदरणीय सुषमा जी, आदरणीय वेंकैया जी, श्रीमान रविशंकर जी, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री और सारे नौजवान साथियों, आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती का प्रेरक पर्व है। जो देश इतिहास को भुला देता है, वह देश कभी भी इतिहास का निर्माण नहीं कर सकता है। और इसलिए एक जीवंत राष्ट्र के लिए, एक आशा आकांक्षाओं के साथ भरे हुए राष्ट्र के लिए, सपनों को सजाकर बैठी हुई युवा पीढ़ी के लिए अपनी ऐतिहासिक धरोहर सदा सर्वदा प्रेरणा देती है। और हमारे देश ने इस बात को भी कभी भी भूलना नहीं होगा कि हम इतिहास को, विरासतों को अपने वैचारिक दायरे में न बांटे। इतिहास पुरुष, राष्ट्र पुरुष इतिहास की वो धरोहर होते हैं जो आने वाली पीढ़ियों के लिए
नया उमंग और नया उत्साह भरते हैं। आज श्रीमती इंदिरा गांधी जी की भी पुण्यतिथि है। सरदार साहब का जीवन देश की एकता के लिए आहूत हो गया। बैरिस्टर के नाते सफल बैरिस्टर गांधी के चरणों में समर्पित हो गए और हिंदुस्तान के किसानों को आजादी के आंदोलन में जोड़ करके उन्होंने अंग्रेज सल्तनत को हिला दिया था। अंग्रेज सल्तनत ने भांप लिया था कि अगर देश का गांव, देश का किसान आजादी के आंदोलन का हिस्सा बन गया तो अंग्रेज सल्तनत की कोई ताकत नहीं है कि आजादी के दीवानों के खिलाफ लड़ाई लड़ सके। कभी कभी जब हम रामकृष्ण परमहंस को देखते हैं तो लगता है कि स्वामी विवेकानंद के बिना रामकृष्ण परमहंस अधूरे लगते हैं। वैसे ही जब महात्मा गांधी को देखते हैं तो लगता है कि सरदार साहब के बिना गांधी भी अधूरे लगते हैं। यह एक अटूट नाता था, यह अटूट जोड़ी थी। जिस दांडी यात्रा ने हिंदुस्तान की आजादी को एक नया मोड़ दिया था, पूरे विश्व को सबसे पहले ताकतवर मैसेज देने का अवसर दांडी यात्रा में से पैदा हुआ था। उस दांडी यात्रा में एक सफल संगठक के रूप में, एक कार्यकर्ता के रूप में सरदार साहब की जो भूमिका थी वो बेजोड़ थी और महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा की पूरी योजना सरदार साहब के हवाले की थी। हम कल्पना कर सकते थे कि देश के आजादी आंदोलन के अलग अलग पड़ाव में महात्मा गांधी के साथ रह करके सरदार साहब की कितनी अहम भूमिका रही थी। और आजादी के बाद सरदार साहब का लाभ देश को बहुत कम मिला, बहुत कम समय तक हमारे बीच रहे, लेकिन इतने कम समय में सरदार साहब ने अंग्रेजों के सारे सपनों को धूल में मिला दिया था, चूर चूर कर दिया था। अपनी दूरदृष्टि के द्वारा, अपनी कूटनीतिक सामर्थ्य के द्वारा, अपनी राष्ट्रभक्ति के द्वारा। अंग्रेज चाहते थे कि देश आजाद होने के बाद सैकड़ों टुकड़ों में बिखर जाए, आपस में लड़ते रहे, मर मिटते रहे। यह अंग्रेजों का इरादा था। लेकिन सरदार साहब ने अपनी कूटनीति के द्वारा, अपनी दीर्घदृष्टि के द्वारा, अपने लोखंडी मनोबल के द्वारा 550 से भी अधिक रियासतों को एक सूत्र में बांध दिया। जिसे सम्मान देने की जरूरत थी उसको सम्मान दिया, जिसको पुचकारने की जरूरत थी उसको पुचकारा, और जिसको आंख दिखाने की जरूरत थी उसको आंख दिखाने में भी सरदार पटेल कभी हिचक नहीं थी, संकोच नहीं किया था। उस सामर्थ्य का परिचय दिया था। और उसी महापुरुष ने एक प्रकार से आज जब हिंदुस्तान देख रहे हैं, वो एक भारत का सप्रदृष्टा, उसके नियंता सरदार पटेल को देश कभी भूल नहीं सकता है। शताब्दियों पहले इतिहास में चाणक्य का उल्लेख इस बात के लिए आता है कि उन्होंने अनेक राजे रजवाड़ों को एक कर करके एक सपना लेकर के राष्ट्र के पुनरुद्धार का सपना देकर के सफल प्रयास किया था। चाणक्य के बाद उस महान काम को करने वाले एक महापुरुष थे जिनका आज हम जन्म जयंती पर्व मना रहे हैं, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। लेकिन ये कैसा दुर्भाग्य है, जिस व्यक्ति ने देश की एकता के लिए अपने आप को खपा दिया था,
आलोचनाएं झेली थी, विरोध झेले थे, अपनी राजनीतिक यात्रा में रुकावटें महसूस की थी, लेकिन उस लक्ष्य की पूर्ति के मार्ग से कभी चलित नहीं हुए थे और वो लक्ष्य था भारत की एकता। उसी देश में, उसी महापुरुष की जन्म जयंती पर 30 साल पहले भारत की एकता को गहरी चोट पहुंचाने वाली एक भयंकर घटना ने आकार लिया। हमारे अपने लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया, और वो घटना किसी संप्रदाय के लोगों के सीने पर गले लगे गांव की नहीं थी। वो घटना भारत की हजारों साल की महान विरासत के सीने पर लगा हुआ एक छुरा था, एक खंजर था, एक भयंकर आपत्तिजनक था। लेकिन दुर्भाग्य रहा इतिहास का कि उसी महापुरुष की जन्म जयंती के दिन यह हो गया, और तब जाकर के देश की एकता के लिए हम लोगों ने अधिक जागरूकता के साथ, अधिक जिम्मेवारी के साथ, सरदार साहब ने हमें एक भारत दिया, श्रेष्ठ भारत बनाना हमारी जिम्मेवारी है। एक भारत श्रेष्ठ भारत, इस सपने को पूरा करने के लिए भारत की जो महान विरासत है, वो विरासत विविधता में एकता की है। उस विविधता में एकता की विरासत को लेकर के जातिवाद से परे उठ करके, भाषावाद से परे उठ करके, संप्रदायवाद से परे उठ करके एक भारत, समरस भारत, ऊंच नीच के भेदभाव से मुक्त भारत, ये सपने को साकार करने के लिए आज से उत्तम पर्व नहीं हो सकता जो हमें आने वाले दिनों के लिए प्रेरणा देता रहे। और युवा पीढ़ी आज इस राष्ट्रीय एकता दिवस पर पूरे हिंदुस्तान में रन फॉर यूनिटी के लिए दौड़ रही है। मैं समझता हूं यह हमारा प्रयास एकता के मंत्र को निरंतर जगाए रखना चाहिए। और हमारे शास्त्रों में कहा है, राष्ट्रयाम जागरयाम वयम, हर पल हमें जागते रहना चाहिए, अपने सपनों को लेकर के सोचते रहना चाहिए, उसके अनुरूप काम करते रहना चाहिए, तभी संभव होता है। भारत विविधताओं में भरा हुआ देश है, अनेक विविधताओं से भरा हुआ देश है। विविधता में एकता, यही हमारी विशेषता है। हम कभी एकरूपता के पक्षकार नहीं रहे, हम विविधता से भरे हुए रखते हैं। एक ही प्रकार के फूलों से बना गुलदस्ता और रंग बिरंगे फूलों से बने गुलदस्ते में कितना फर्क होता है। भारत उन विशेषताओं से भरा हुआ देश है। उन विशेषताओं को बनाते हुए एकता के सूत्र को जीवंत रखना, एकता के सूत्र को बलवंत बनाना, यही हम लोगों का प्रयास है और यही एकता का संदेश है। राज्य अनेक, राष्ट्र एक, पंथ अनेक, लक्ष्य एक, बोली अनेक, स्वर एक, भाषा अनेक, भाव एक, रंग अनेक, तिरंगा एक, समाज अनेक, भारत एक, रिवाज अनेक, संस्कार एक, कार्य अनेक, संकल्प एक, राह अनेक, मंजिल एक, चेहरे अनेक, मुस्कान एक। इसी एकता के मंत्र को लेकर के यह देश आगे बढ़े। मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं, अपने स्थान पर खड़े होकर के आज हम एक शपथ लेंगे। राष्ट्रीय एकता दिवस का है हमारा संकल्प। यह औपचारिकता नहीं है, हम लोगों का दायित्व है। मैं यहां से बोलूंगा, आप सब उसे दोहराएंगे। मैं सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूं कि मैं
राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का भी भरसक प्रयत्न करूंगा। मैं यह शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूं, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का भी सत्यनिष्ठा से संकल्प करता हूं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सरदार पटेल, सरदार पटेल, सरदार पटेल। बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, दो सूचनाएं हैं। 1 मिनट के बाद प्रधानमंत्री जी वहां आएंगे और वहां से एकता दौड़ का शुभारंभ करने का फ्लैग ऑफ करेंगे। मेरा प्रार्थना यह है, लोग जो खड़े हैं वो अपना जगह पे रहे। ये फ्लैग ऑफ करने के बाद लाइन के हिसाब से हम लोग आगे बढ़ना है। उसी समय क्रिकेट जाने माने खिलाड़ी श्री गौतम गंभीर जी भी हमारा बीच में है। मैं उनको भी अनुरोध करूंगा वो भी आए, वहां प्रधानमंत्री के साथ वहां मिले। आपकी प्रेरणा से भारत में उसकी अस्मिता में एक नई सुगंध, नई उमंग और नई लहर उत्पन्न हो चुकी है। माननीय, हम आपसे करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि कृपया अपने कर कमलों द्वारा फ्लैग ऑफ करके रन फॉर यूनिटी का शुभारंभ करें। सचिव खेल श्री अजीत मोहन शरण से मेरा निवेदन है कि कृपया माननीय प्रधानमंत्री जी को ये फ्लैग सौंपें। ये रन फॉर यूनिटी गृह मंत्रालय के सौजन्य से आयोजित की गई है और विद द हेल्प ऑफ इंडिया सिटी वॉक्स और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हमारे बीच में गौतम गंभीर मशहूर क्रिकेट खिलाड़ी, विजेंद्र सिंह बॉक्सर, सुशील कुमार रेसलर, योगेश्वर दत्त, अभिषेक वर्मा, समरेश जंग, सभी खेल सेलिब्रिटीज से निवेदन है कि इसमें शामिल हो और आप लोग सभी एक एक करके शामिल होंगे। सबसे आगे माननीय प्रधानमंत्री जी और उसके बाद सभी मंत्रीगण और उसके पीछे से खेल सेलिब्रिटीज होंगे और आप लोग एकजुट होकर, लेकिन प्लीज़ थोड़े से आपसे निवेदन है कि कृपया थोड़ा सा दूरी बनाकर रखें और उसके बाद एक एक करके शामिल हों इस रन फॉर यूनिटी में। ये दौड़ एकता की दौड़ है, एकजुट होकर दौड़ें। पहले माननीय प्रधानमंत्री जी, फिर माननीय मंत्रीगण और उसके बाद खेल सेलिब्रिटीज और जवान युवा धीरे धीरे करके एक एक उसमें शामिल होंगे। आप सभी से निवेदन है कि थोड़ी सी दूरी बनाकर रखें। सरदार पटेल संयम के शीर्ष उदाहरण थे, उन्हीं की प्रेरणा को ध्यान में रखें। एक एक करके धीरे धीरे शामिल हो इस रन में। आइए हम सब मिलकर उद्घोष करें कि जहां तक हो तू सूरज की तरफ परवास कर भारत, जहां तक हो तू सूरज की तरफ परवास कर भारत, तेरी परछाई साया बनकर छा जाएगी दुनिया पर। यूं तो संपूर्ण राष्ट्र की मंगल यात्रा शुरू हो चुकी है और अब शुरू हो चुकी है आज विकास की ओर साथ साथ एकजुट होकर आगे बढ़ते, एक साथ बढ़ते कदम। रन शुरू हो चुकी है। आपसे निवेदन करती हूँ कि एक एक करके इसमें शामिल हो और इंडिया गेट तक उसी जज्बे के साथ, उसी जोश के साथ जिसका समंदर आप सभी के दिलों में लहरा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ध्वज
लहराकर उसका शुभारंभ कर रहे हैं। सभी से निवेदन है कि इस रन फॉर यूनिटी में एकता की दौड़ में शामिल हो। अब हम माननीय प्रधानमंत्री जी आपकी प्रेरणा से आगे बढ़ते ही रहेंगे, रुकेंगे नहीं। तू ना थमेगा कभी, तू ना रुकेगा कभी, तू ना मुड़ेगा कभी, कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ। तू ना थकेगा कभी, तू ना थमेगा कभी, तू ना मुड़ेगा कभी, कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ। आंधियां चली, बादल गरजे, सागर भी लहरे कई बार, पर तुम्हें पीछे हटते देखा ना किसी ने एक बार। तुम पर दुनिया ने नाज किया, तुम हो भारत के कीर्तिमान, बिजली सी मचल मचल लहरे, ये राष्ट्रपिता का स्वाभिमान, ये राष्ट्रपिता का स्वाभिमान। एक एक करके सभी इस दौड़ में शामिल हो। पानी की व्यवस्था की गई है। ये दौड़ इंडिया गेट तक है और स्वच्छ भारत जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिसका शुभारंभ किया था महात्मा गांधी के जन्म दिवस के अवसर पर 2 अक्टूबर में, उसका भी हम ध्यान रखें और जितनी भी बॉटल्स हम उसका उपयोग करें, इस्तेमाल करें, उसे डस्टबिन में डालना न भूलें। आपकी सुविधा के लिए आप सभी के इस जोश को, उत्साह को, जो कि बहुत ही जायज़ है और होना भी चाहिए, उसको मैं नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। परिंदे हौसला कायम उड़ान में रखना, हर एक निगाह तुझी पर है ध्यान में रखना। परिंदे हौसला कायम उड़ान में रखना, हर एक निगाह तुझी पर है ध्यान में रखना। बुलंदियां तेरी हिम्मत को आजमाएंगी, परों में जान नजर आसमान में रखना। एक एक करके इस दौड़ में शामिल होंगे, थोड़ी थोड़ी दूरियां बनाकर रखेंगे, एक साथ एकजुट लेकिन थोड़ा अनुशासन के साथ थोड़ी थोड़ी दूरियां बनाकर रखिए। और ये रन फॉर यूनिटी इंडिया गेट तक जाएगी उसी जोश, उसी उत्साह के समंदर के साथ। आप लोग प्लीज इस रन फॉर यूनिटी में शामिल होने आए हैं, आपसे निवेदन है कि इसमें शामिल हो और एक के बाद एक इस कारवां में साथ होते जाइए। मैं अकेला ही चला था जाने वे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि उठो, जागो, चलो, तब तक चलते रहो जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। कोई बाधा हमें रोक नहीं सकती, कोई शक्ति हमें दबा नहीं सकती, क्योंकि हम में एक ऐसा जुनून है, जोश है, जिसमें जूझने की हिम्मत है, जिसमें जीतने का हौसला है। एक एक करके सभी लोग शामिल हो जाएं इस रन फॉर यूनिटी एकता की दौड़ में। जी हाँ, उसी जज्बे, उसी जलजले के साथ, उसी उत्साह के साथ, उसी समंदर के साथ धीरे धीरे बहुत अच्छे तरीके से आप लोग इस दौड़ में शामिल हो रहे हैं। अनुशासन को बनाए रखें। जो भी प्रतिनिधि आए हैं जिस जिस ग्रुप के साथ में, वो उस अनुशासन को ध्यान में रखें और एक के ऊपर एक ना जाए, धीरे धीरे एक के पीछे एक चले। आइए हम सब प्रण करें कि हमारी हर एक सोच, हर एक सांस, हर एक कदम वही हो जो राष्ट्र हित में हो। जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल का मानना था, उन्होंने हर कार्य वही किया जो राष्ट्र हित में था। धीरे धीरे करके शामिल हुए इसमें। बहुत अच्छे तरीके से आप लोग इस रैली को, इस दौड़ को निभा रहे हैं और उसमें शामिल हो रहे हैं। अगर आप लोग जोरदार तरीके से नारे भी लगाएंगे तो इसमें और जान आ जाएगी। जो उत्साह हमारे दिल में है, उसी उत्साह के साथ बहुत अच्छे। सरदार पटेल का सपना एकजुट भारत अपना, सरदार पटेल का सपना एकजुट भारत अपना। इन सभी को हम रिपीट करते हुए जाएंगे। एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत। दौड़ेगा भारत, जुड़ेगा भारत, दौड़ेगा भारत, जुड़ेगा भारत। जहां एकता है वहां शक्ति है, जहां एकता है वहां शक्ति है। एकजुट भारत, प्रगतिशील भारत, अनेकता में एकता, भारत की विशेषता। मैं आप सभी से निवेदन करूंगी कि राष्ट्र हित के इस रैली में जरूर शामिल हो। ये एक महायज्ञ है राष्ट्रीय एकता। इसमें अपनी अपनी सेवाओं की आहुति देते रहिए और एक एक करके नारों के साथ इसमें शामिल होते रहिए। बहुत अच्छे।
सारे स्कूल के बच्चे और जवान सीआरपीएफ के, यहाँ पर फायर ब्रिगेड के भी जवान मौजूद हैं। सभी रन फॉर यूनिटी में जोरदार नारे लगाते हुए इस आकाश को अपनी ध्वनि से गुंजायमान कर दीजिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र का आह्वान किया है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, उसी को अगर आप राजपथ पे गुंजा देंगे वही काफी है। सीआईएसएफ के जवान भी यहाँ पर मौजूद हैं। सीआईएसएफ के जवान आए हुए हैं। अलग अलग यूनिट से सीआईएसएफ के जवान यहाँ पर आए हुए हैं। आपका जज्बा देखने के काबिल है। ये जो लोगों का समंदर, भारतवासियों का समंदर यहाँ पर लहरा रहा है, ये यही बता रहा है कि देश प्रेम की भावना हमारे दिल में कितनी गहरी है, समंदर की तरह गहरी है। उसमें जो लहरें हैं, उसका जो तूफान है, वो भी समंदर की तरह है। सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी भी यहाँ पर मौजूद है। एक बार